Okay, so today we are going to study economics and the chapter is national income. We can say we are going to revise this chapter. This chapter is taught in your school. We are going to revise it because you all know your exams are coming, your tests are coming. So this chapter will be coming in your test. The first chapter, the introduction of macroeconomics, and the second chapter, that is national income. So these two chapters will come in your test. So that is why I'm going to give you a revision of this chapter, that is national income. So we all know there are three methods to calculate national income. The first is value added method, the second is income method, and the third is expenditure method. So these three methods are used to calculate national income. So all the three methods have different formula and you have to learn each formula, then you can easily solve the question of national income. So starting from the first method, that is value added method. In short, what it is known as, it is known as GDP-MP. शॉर्ट में हम लोग वैल्यू एडेड मेथड को GDP-MP बोलते हैं. The formula of value added method is value of output minus intermediate consumption. Value of output minus intermediate consumption is 99% it is given in your question. अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है, बट मोस्टली इट इज़ रिटन इन योर क्वेश्चन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, इफ इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, देन हाउ वी सॉल्व दिस, बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. जब हम लोग सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं, देन वी गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट. इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है 1%, देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज डोमेस्टिक कंजम्पशन माइनस इम्पोर्ट्स. ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे अगर ये नहीं गिवन होगा तो, बट 99% इट इज़ गिवन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, by this formula we get our value of output, intermediate consumption by this method, by this formula. Okay, sometimes change in stock is also not given. Change in stock भी क्वेश्चन में कभी कभी नहीं given होता. Then what we do, we use the formula change in stock is equal to closing minus opening stock to get change in stock. So ये पूरा एक complete formula है value added method का. इससे हम लोग इससे हम लोग का क्या निकल के आता है? our GDP-MP. By this method we calculate our GDP-MP, and after calculating GDP-MP we solve the question whatever it is asking. जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, जैसे NDPFC, NNPFC, कुछ भी पूछ रहा है, तो then we can convert it from this method. Okay, so this was our first method. The second method is income method. First method was value added method, the second is income method. Income method in short is known as NDPFC. Income method is known as NDPFC. The formula of income method is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. It is the formula of income method. Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Okay, so sometimes in the question it is not given, compensation of employees is not given, operating surplus is also not given, then we have to calculate it by using the formula. Compensation of employees किससे मिलके बनता है? वेजेस एंड सैलरीज अगर क्वेश्चन में गिवन है. अगर आपको कुछ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, देन ये सब चीज़ें आपको गिवन होगी. फॉर एग्जांपल वेजेस एंड सैलरीज गिवन होगा कहीं पे इन कैश, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, सैलरीज इन कैश, सैलरीज इन काइंड, ये लिख के आएगा क्वेश्चन में. और एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन फंड एक और होता है, रिटायरमेंट फंड या पेंशन फंड, ये भी आता है इसी में. देन ऑपरेटिंग सरप्लस, समटाइम ऑपरेटिंग सरप्लस इस नाम से नहीं दिया होता क्वेश्चन में, देन हम लोग कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस को? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा. रेंट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, इंटरेस्ट डायरेक्टली गिवन होगा, प्रॉफिट समटाइम्स इज नॉट गिवन डायरेक्टली.
प्रॉफिट को भी हमें निकालना पड़ता है। तो प्रॉफिट किस नाम से आ जाता है? प्रॉफिट के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये सब इसके पार्ट हैं प्रॉफिट के। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, डिविडेंड भी आ सकता है, डिविडेंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो जब हम लोग ये तीनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा हमारा, और प्रॉफिट बन जाएगा तो प्रॉफिट में ये दोनों ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा। एंड मिक्स्ड इनकम इज गिवन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। ओके, सो दिस वॉज इनकम मेथड। इनकम मेथड को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं NDPFC। फिर जब हम लोग का NDPFC निकल के आ जाएगा, देन वॉट एवर इज आस्किंग इन द क्वेश्चन वी कैन कन्वर्ट इट by seeing what is asking in the question. Then the third method is expenditure method. Expenditure method is also known as GDPMP. Formula is private final consumption expenditure. स्मॉल में लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, इसमें क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बट वी हैव टू यूज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ओनली। देन how can we convert gross domestic fixed capital formation to gross domestic capital formation? By adding change in stock. When we add change in stock in gross domestic fixed capital formation, then we get gross domestic capital formation. एक चीज़ समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया तो ये दोनों ज़रूर दिए होंगे। अगर क्वेश्चन में मेन चीज़ नहीं दी, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया ये सब दिए होंगे। इनमें से हो सकता हो कि इंटरेस्ट ना दिया हो तो रेंट प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो ये चीज़ें दी होंगी क्वेश्चन में ज़रूर से। अगर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है तो इसका मतलब इसके पार्ट्स क्वेश्चन में ज़रूर से गिवन होंगे, तभी आप उसको कैलकुलेट करके ये निकाल पाएंगे। इसी तरह जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना लिख के ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा जाता है तो इसका लिखा होना कंपलसरी होगा क्वेश्चन में। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगा, देन वी ऐड चेंज इन स्टॉक इन दिस टू वी विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट से हम लोग इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं, देन वी गेट अवर नेट एक्सपोर्ट। इन शॉर्ट नेट एक्सपोर्ट इज रिटन एज x माइनस एन। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? x माइनस एन। ओके, सो व्हेन वी विल कैलकुलेट ऑल दिस वी गेट अवर GDPMP. GDPMP is known as expenditure method. Then we convert it according to the question. So I have also written here conversion, how we convert from gross to net, domestic to national, market price to factor cost and vice versa. कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए, फिर से एक बार कहीं पे लिख लीजिए अगर कहीं नहीं लिखा हो पहले स्कूल में तो। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, अगर हम लोग ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम नेट टू ग्रॉस वी ऐड डेप्रिसिएशन। व्हेन वी मूव फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल वी ऐड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। When we move from national to domestic, when we deduct net factor income from abroad. Okay, the next is market price to factor cost. When we move from market price to factor cost, then we deduct NIT and we add subsidies. NIT is net indirect taxes. And when we move from factor cost to market price, we add NIT and we deduct subsidies. NIT is net indirect taxes. Okay, now suppose GDPMP is given in the question. We have to calculate suppose GDPMP and NDPFC we have calculated. NDPFC हमारा निकल के आ गया है। फॉर एग्जाम्पल हमें इनकम मेथड से GDPMP बनाना था। इनकम मेथड को बोलते हैं NDPFC, NDPFC से हमें GDPMP बनाना है।
So we will convert it. Firstly, we will see net to gross. How we will move from net to gross? Net to gross. What we do? We will add depreciation. From net to gross, LHS will be equal to RHS. LHS को RHS के इक्वल होना चाहिए. RHS अभी LHS के इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, RHS को LHS बना देंगे. तो N को G बनाने के लिए क्या करेंगे, N को G बनाने के लिए क्या करेंगे, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे. तो ये ग्रॉस बन जाएगा. ओके. देन डी कोई चेंज नहीं है इसमें, कुछ नहीं करेंगे. FC/MP, P का मतलब कहता है प्रोडक्ट सब में होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. FC/MP, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस. व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड NIT and we will deduct subsidies. So by this way we convert our we can say whatever we calculate, we convert it by this method. By using this conversion method, we calculate our whatever is asked in the question, we calculate it by this conversion method. Okay, so this is just a revision of your topic of national income, and this chapter will come in your test. All the three methods will come, and in the introduction of macroeconomics chapter will also come in your test. And from now, after we will complete our chapter shares, we will just start our chapter of economics. We will just start our economics. The next chapter of economics we will start, but in the examination only this chapter will be asked and the previous chapter will be asked, which was taught in your class. So this is very simple but little bit lengthy. एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में तीनों मेथड से पूछ लिया आपको, इफ़ इन द क्वेश्चन तीनों मेथड से अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड, फ्रॉम इनकम मेथड, फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, क्वेश्चन में अगर तीनों मेथड से दे दिया सॉल्व करने के लिए, तो एक चीज़ और समझ लीजिए, तीनों मेथड के आंसर जो होते हैं वो सेम आते हैं. क्योंकि हम लोग नेशनल इनकम निकाल रहे हैं किसी कंट्री मतलब अपने कंट्री की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो वो सेम आएगी. हम लोग किसी भी मेथड से निकाल रहे हैं, कोई भी मेथड यूज़ करें, आंसर हमारा सेम आएगा. तो तीनों मेथड के आंसर क्या होते हैं, सेम होते हैं. अगर सेम नहीं हो रहे तो चेक इट वंस अगेन, you must have done somewhere wrong. Okay, so revise this chapter very carefully. If you have any doubt, you can ask me. Just what you have to do, you have to fill the values which are given in the question, then you can solve it very easily. Okay, thank you.